जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अनिल जायसवाल और आप देख रहे हैं वायरल खबरें। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो पीछे दिख रहा है यह कोई जगह नहीं है। मलाड वेस्ट में चौकी की बनी हुई नई ब्रिज का वीडियो है। आपको बता दें कि इस ब्रिज के बनने से लोगों को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। जैसे कि पहले ट्रैफिक होती थी मलाड स्टेशन से मारवे की तरफ और बोरीवली से अंधेरी लिंक रोड की तरफ जाने वाले लोगों के लिए यह परेशानियां अब दूर हो गई। मलाड वेस्ट चौकी के पास ये ब्रिज बनी हुई है और जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के हाथों होने वाला है। या ये प्रोग्राम जो आईआईपी ने ऑर्गेनाइज किया है, इंडिया स्टार रिकग्निशन और पैक मशीन, ये इंडिया के जो पैकेजिंग डिज़ाइन और मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइंस हैं पैकेजिंग क्षेत्र के, उनमें जो बेस्ट पॉसिबल डिज़ाइंस हैं उनको सेलेक्ट करके आईआईपी एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही है और जिसके माध्यम से हम पैकेजिंग इंडस्ट्री को एक तो प्रोत्साहन देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि उनके जो प्रयास हैं उनको हम और बढ़ावा देना चाहते हैं। और दूसरा, यही सारी एंट्री जो विनर्स हैं वो एशियन पैकेजिंग फेडरेशन में एशिया स्तर पे और वर्ल्ड पैकेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड स्तर पे एशिया स्टार और वर्ल्ड स्टार अवार्ड के लिए कम्पीट करती हैं। तो आज का जो फंक्शन है वो विनर्स को रिकॉग्नाइज करने का और साथ में पैकेजिंग इंडस्ट्री के साथ अपने कनेक्ट को और बढ़ाने का एक अवसर है, जहां हमने मिलेट क्वीन ऑफ इंडिया को इनवाइट किया है। पिछला साल मिलेट के लिए समर्पित था भारत सरकार द्वारा,
और इन्होंने उड़ीसा में और पूरे देश में मिलेट के प्रति जो एक जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और हमारे चेयरमैन आईआईपी सुनील जैन साहब हैं जो इंडस्ट्री से ही हैं, तो हम सब मिलके ये संदेश देना चाहते हैं कि पैकेजिंग के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है उससे देश की आर्थिक प्रगति होने वाली है, उसमें अपना योगदान हम देना चाहते हैं। मैम के लिए आप बताएं। वो बताएंगे, मैं बताते हैं। हाँ, आप बताइए मैम, आपकी तरफ से जो कहना चाहते हैं। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଆଇବି ବୋଲି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ଭାଷା ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରୁଥିଲି, ତା ବାଦେ ବି ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ନୂଆରେ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିଛି, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସକାଳେ ବି ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପୁଣି ମୋତେ ବି ଆଜି ଦୁଇ ପଦ କହିବା ପାଇଁ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛି। କାହିଁକି ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କନେକ୍ଟ କରି ରଖିଛି। ପୁଣି ମୁଁ ବହୁତ କଥା ବି ଶୁଣିଛି, ଲୋକର ଆଗରୁ ବହୁତ ଗାଳି ବି ଖାଇଛି। ପୁଣି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି, ମୁଁ ଯାହା ଲୋକ କହିଲେ ବି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲି। ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, ଆଗକୁ ମୋ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବି, ପୁଣି କେମିତି ବୁଡ଼ିଯିବା ଜିନିଷଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବି। କେମିତି ଦେଶୀ ଭେରାଇଟି ଯାକ ଅଛି ଆମର କୋରାପୁଟରେ, ବହୁତ କିଛି ଦେଶୀ ଭେରାଇଟି ଅଛି। ଧାନ ହଉ, ମାଣ୍ଡିଆ ହଉ, ପନିପରିବା ମଞ୍ଜି ହଉ, ଯେଉଁ କିଛି ବି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଆମ ପିଲାଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାଛୁଆ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି କାମକୁ ଲାଗିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଥିଲି। ମୁଁ ପୁଣି ଏତେ ଦୂର ଆଗକୁ ଯିବି ବୋଲି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋତେ ଡାକରା ହେଇଥିଲା, 3 ଦିନିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା, ସେଇଠି ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ G20 ମିଟିଂ ହେଉଛି, ସେ G20 କେମିତିଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେଠି ବି ମୋତେ ଡକାଗଲା। ସେଠି ମୁଁ ଆମର ଯେତିକି ଅଛି, ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲି। କେମିତି ଶୁଖା ଜିନିଷ ରହିବ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ମାଣ୍ଡିଆର ନାଡ଼ି, ମିକ୍ସଚର, ଆରି ମାଣ୍ଡିଆର କେତେଟା ଭେରାଇଟି, ଆରି ଧାନର କେତେଟା ଭେରାଇଟି, ମାଣ୍ଡିଆର କେତେଟା ଭେରାଇଟି ଧରିକି ଯାଇଥିଲି। ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବାଉଁଶରେ ଡାଲା, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେ ଯାକ ତିଆରି କରି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ହଉ, ଶୁଆ ହଉ, ଧାନ ଯେଉଁଟାରେ କାଟନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଧରିକି ଯାଇଥିଲି। ପୁଣି ସେଠି ନେଇକି ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ 20ଟା ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ। ସେଇଠି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେଠି ନେଇକି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖେଇଲି। ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସେ ଟାଇଟେଲରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଦେଖିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। କୋରାପୁଟରେ ଏତିକି ମାଣ୍ଡିଆ ଅଛି ବୋଲି କହିଲା। ହଁ ସାର୍ ଅଛି ବୋଲି କହିଲି। ପୁଣି ମୁଁ ତ ଏତେ ଦୂର ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ଆମର ତ ଜେଜେବାପା ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଉଥିଲେ, ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଟା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ପୁଣି ମାଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇକି ଆମ ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବେ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି। ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯାଇକି ଲଗେଇବାଟା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଉଛି। କେମିତି ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବେ, ଧାନ ହଉ କି ମାଣ୍ଡିଆ ହଉ, ସରକାର ଖତ ନ ଦେଇକି ଦେଶୀ ଖତରେ କେମିତି ଚାଷ କରିପାରିବେ, କମ୍ ବିହନରେ କେମିତି ଅମଳ କରିପାରିବେ, ସେ ଉପରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ପୁଣି ମୋତେ ଗର ବି ନଥିଲା। ବିହନ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବିହନ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଗର ନଥିଲା। ମୁଁ ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିହନ ପାଣ୍ଠି ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଲି। କହିଲାରୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀନାଥ ନାୟକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲାରୁ ତାଙ୍କେ କିଛିଟା ପଇସା ଦେଲେ। ମୋତେ ଗାଁର ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲାରୁ ମୁଁ ସେ ଘରରେ ବିହନ କେମିତି ରଖିପାରିବି ମୁଁ ଗାଁର ଲୋକ କହିଲାରୁ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକ ରାଜି ହେଲେ। ପୁଣି ସେ ଘର ତିଆରି କରି ବିହନଟାକୁ ରଖିଲୁ। ପୁଣି ମିଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ମିଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ସେଟା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ଦେଇଥିଲା। ସେ ପଇସା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଦେଲେ ଭଲସେ କରିଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ କଲି। ମୋ ନିଜ ଜମି ଦେଇକିନା ବି ମୁଁ ନିଜେ ସେଠି ମୁଁ ଘର ତିଆରି କରି ଏବେ ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ମିଟିଂ ଯାହା କିଛି ବି ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ଚାଷୀମାନେ ବି ଭଲରେ ବସିପାରୁଛନ୍ତି। मैडम ये बोले कि एक्चुअली वो बहुत एक्साइटेड है यहाँ पे आने के लिए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसके लिए वो थैंक यू कहना चाहते हैं सबसे पहले। और उन्होंने जो भी काम किया था वो अपने लिए और अपने
जो भी है परिवार या पास में उनके लिए किया था। पर ये मिलेट का इतना बड़ा उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा और ये इतने फेमस होंगे, इनके सारे जितने भी मेथड्स हैं वो फेमस होंगे, उनको पता नहीं था। वो फिर से दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं आप सभी को। एंड वो यहाँ पे आके बहुत खुश है। उन्होंने ये भी बोला कि आज सुबह उनको मतलब मंदिर घुमाने लेके गए थे जो कि सर अरेंज किए थे, तो वो उसके लिए भी बहुत खुश है। उसके लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि मिलेट एक खाने की चीज़ है और पैकेजिंग के बिना कोई चीज़ खाने की आगे प्रॉस्पर नहीं कर सकती। तो ये बहुत ही अच्छा संगम है खाने का और पैकेजिंग का। और ये जो अवार्ड मिल रहे हैं ये इसीलिए मिल रहे हैं लोगों को कि मोटिवेट किया जाए, उनको इंकरेज किया जाए कि और पैकेजिंग में डेवलपमेंट करें और फूड की और कंजम्पशन उससे बढ़ेगी। जो पॉवर्टी लाइन है वो लोगों की ठीक होगी जब उनको खाने की चीज़ें मिलेंगी। तो ये हमारा मैसेज है और इसी कारण से मिलेट की रानी नहीं महारानी हमारे साथ है। तो यही मैसेज अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की तरफ से देना चाहते हैं कि खाने और पैकेजिंग का क्या संबंध है। थैंक यू। सॉरी, ओडिशा गवर्नमेंट के साथ मिलेट की फार्मिंग को, उसकी पैकेजिंग को, फार्मर्स को ट्रेन करने के लिए हमने एक MOU साइन किया था ओरमास करके इंस्टीट्यूट। उस एजेंसी में IIP को मौका मिला उड़ीसा के किसानों के साथ में काम करने का, और उसी दौरान हमें पता चला कि मिलेट के बारे में जो कार्य किया है इन्होंने, उसको हमने अच्छे से देखा नज़दीक से, और अभी अपॉर्चुनिटी मिली किसी को रिकॉग्नाइज करने का, तो हमने इस फंक्शन में इनको इनवाइट करने का डिसाइड किया। तो हमने ओडिशा के साथ तो किया ही है, इसके साथ साथ केरला गवर्नमेंट में समिति करके एक ऑर्गेनाइजेशन है फार्मर्स का, और नॉर्थ ईस्ट में बहुत मेजर आउटरीच है IIP के द्वारा, जो बैम्बू फार्मिंग है और इस तरह के MSME या स्किल्ड आर्टिजान्स, इन सब की पैकेजिंग के लिए। आपको पता होगा कॉमर्स मिनिस्ट्री की स्कीम है एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP, उसके अंदर में बहुत सारे पैकेजिंग डिजाइन करके अलीगढ़ के ताला या चिकनकारी जो ड्रेसेज हैं उनकी प्रॉपर पैकेजिंग करके जो आर्टिजान्स हैं उनको प्रॉपर वैल्यू एडिशन कैसे बढ़ सके, इसके लिए IIP बहुत कोशिश कर रही है और हमारे डिजाइन काफ़ी अप्रिशिएट किए गए हैं पूरे कंट्री में। क्या पूरा थीम है आज के इवेंट का, और क्या कुछ मैसेज आएगा IIP से? यही मैसेज है कि हम पैकेजिंग इंडस्ट्री के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना चाहते हैं और भारत के पैकेजिंग नीड्स को पूरा करना चाहते हैं, और जो एक्सपोर्ट हो या कंज्यूमर को कोई भी सप्लाई हो, वो गुड सही कंडीशन में, एस्थेटिकली, सेफली, कंज्यूमर के लिए फिट कंडीशन में उन तक सारा सामान पहुंचे, और साथ ही एनवायरनमेंट के लिए जो सही है उन सब कदमों को उठाना चाहते हैं ताकि हमारी पैकेजिंग से कोई भी क्षति ना पहुंचे एनवायरनमेंट को। आज का कंज्यूमर काफ़ी कॉन्शियस कंज्यूमर है और उसकी सारी नीड्स को पूरा करना हमारा धर्म है। तो हम IIP में एजुकेशन हो या टेस्टिंग हो, R&D हो, सारे तरफ से हम इन सारे क्षेत्रों में ध्यान देना चाहते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम भारत के पैकेजिंग नीड्स को फुलफिल कर सकें। थैंक यू। इंडिया स्टार 2024 और पैक मशीन 2024 ये पूरे भारत के पैकेजिंग और अलाइड इंडस्ट्री में एक बहुत ही लोकप्रिय ऐसा एक पुरस्कार माना गया है। हर एडिशन में हम कुछ ना कुछ नया इनोवेशन जो है उसको पुरस्कृत करने का कोशिश करते हैं, और सिर्फ इकलौता ऐसा ये पुरस्कार है जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री या फूड, फार्मा, पैकेजिंग, मशीनरी और अलाइड सेक्टर लीजिए जो भर भर के इसमें हमें नॉमिनेशंस देते हैं, जो कि ये एक राष्ट्रीय दर्जे का पुरस्कार है। इसका जो जजिंग होता है, असेसमेंट, वो हम नहीं करते, हम बाहर से एक बहुत ही उम्दा पैनल डिसाइड करके रखते हैं। और मुझे ये कहने में बहुत ही गर्व हो रहा है कि इस साल हमने 473 नॉमिनेशंस प्राप्त किए इंडिया स्टार के लिए, और उसका जो रिजल्ट हमने अनाउंस किया, और ये जो विनर्स हैं ये हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भेजते हैं इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए। वर्ल्ड स्टार में 44 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत ने अब तक का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। 56 नॉमिनेशन हमने ये इंडिया स्टार
अवार्ड विनिंग एंट्रीज भेजे हैं, जो 44 देशों में से भारत जो है वो सबसे ऊपर है, पहले क्रमांक पे। कोई भी देश इतने नॉमिनेशंस वर्ल्ड स्टार के लिए भेजा नहीं है 2024-25 के लिए। उसके बाद में एशिया स्तर पे एशिया स्टार नाम का एक अवार्ड होता है जो एशियन पैकेजिंग फेडरेशन ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें 11 देश हिस्सा लेते हैं एशिया के। और ये एशिया स्टार अवार्ड में भारत ने 75 नॉमिनेशंस दिए हैं, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ नॉमिनेशन का इतिहास रहा है, जो 10 देशों में से कोई भी दे नहीं पाया है। और मुझे कहने में बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि एशिया स्टार में भारत जो है वो अपना दबदबा बरकरार रख के 75 में से 27 अवार्ड प्राप्त करके 1 नंबर पे है। और इंडिया स्टार इसके लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जो इंडिया स्टार के जो विजेता हैं, सिर्फ वही विजेता एशिया स्टार और वर्ल्ड स्टार के लिए आगे बढ़ाए जाते हैं। और हमें ये गर्व है कि भारत का सर ऊंचा करने में और ये इंडस्ट्री को हम अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म देने में इंडिया स्टार कहीं ना कहीं बहुत ही कारगर साबित हुआ है। IIP जो है भारतीय पैकेजिंग संस्थान की एक कोशिश रही है कि हमेशा इंडस्ट्री के लिए कुछ नया हम इनोवेशन और इंडस्ट्री को इनकरेज करते रहें। बहुत ही जल्द हम बेंगलोर सेंटर से इनॉग्रेशन करने वाले हैं और नया सेंटर हमारा स्थापित हो रहा है। पिछले साल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें मदद की गई, उसके तहत हमने लखनऊ में एक नया सेंटर शुरू कर दिया है। हम लोग बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलके कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम और नए पैकेजिंग के आयाम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। My name is Dev Prakash. I am from Bloom Seal Containers Private Limited. Actually, this event is a great event for everybody to encourage for the innovations, sustainability, and association with the IIP. Here, the platform is like to develop a lot of innovative packaging solutions for the industries, and also encouraging all upcoming peoples to be the part of this. It was really a great platform for us and everybody to prove ourselves and do our best for the coming future for the country. How was the experience See, it's always great pleasure for us. IIP has become, it's like a global leader, like I can say that. Okay, IIP has a weightage to recognize everything as a globally. Okay, and IIP has given a lot of, you can say talents to the country, to the nations, to the many companies who are working there. So yes, it's really a pleasure moment for all of us.